हालेलुया। Praise the name of Jesus. यीशु के नाम की It's स्तुति हो। wonderful to be with you this morning. आज सुबह आपके साथ मिलकर बहुत खुशी हो रही We are है going to see a very important thing this morning. और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात को देखने वाले हैं। God is going to speak to you in a very special way this morning. और आज सुबह परमेश्वर आपसे बहुत ही विशेष तरीके से बात करने वाले हैं। So before we start, let us look into the Word of God and read from Hebrews chapter 1 verses 2 and verses 4. आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। इब्रानियों अध्याय 1 वचन 1 और 2 यहाँ पर पढ़ते हैं। Has in this last day spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds, having become so much better than the angels, as he has by inheritance obtained a more excellent name than they. और ये कहता है वचन 2, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वचन 4 कहता है, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहराया जितना उसने उनके बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। Many of us Christians, we do not know the power which has been vested to us in the name of Jesus. हम बहुत से विश्वासी यीशु के नाम में जो सामर्थ्य है उसके बारे में नहीं जानते हैं। We have a great inheritance in the name of Jesus. यीशु के नाम में हमारे पास में बहुत ही महान विरासत है। This morning I want to open your eyes to this truth so that you may be able to receive a great blessing which can come into your life. और आज मैं इस महान सच्चाई के लिए आपकी आंखें खोलना चाहता हूं ताकि आप देखें कि आपके जीवन में कितनी महान आशीष इसके कारण आती The है। Bible says people perish because of lack of knowledge. बाइबल कहती है कि लोग तो ज्ञान की कमी के कारण नाश होते हैं। You know why? Because Satan wants to keep us blind and he doesn't want us to know the power which is vested in the name of Jesus. जानते हैं क्यों? क्योंकि शैतान तो हमें केवल अंधा रखना चाहता है, ताकि वो चाहता है कि यीशु के नाम में जो सामर्थ है उसे हम न जानें। But this morning I want you to open your eyes to this wonderful truth that will bring a revolution in your life. लेकिन आज सुबह मैं चाहता हूं कि हमारी आंखें खोली जाए ताकि हम इस सत्य को जाने जो हमारे जीवन में क्रांति लेकर आएगा। God wants you to live from victory to victory in your life. परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में विजय से विजय में जीते चले You know, जाएं। many Christians live a very ordinary, defeated life. बहुत से विश्वासी जो है वो बहुत ही साधारण सा हारा हुआ जीवन जीते हैं। But that is not the plan of God for your life. लेकिन आपके जीवन के लिए ये परमेश्वर की योजना नहीं है। God has got a great and a mighty plan for you. परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ही महान और सामर्थी योजना रखी The है। plan to see that you live in victory in every area of your life. और ये तो ऐसी योजना है कि आपके जीवन में आप अपने हर एक क्षेत्र में विजय में जीवन जिए। Yes, a Christian life is a victorious life. हाँ, मसीह जीवन तो ये तो विजयी जीवन है। A Christian life is an overcoming life. मसीह जीवन तो जयवंत होने वाला जीवन है। That is what God wants to do today in your life. और यही तो परमेश्वर आज आपके जीवन में करना चाहते I हैं। want you to listen very carefully what God has got this morning for you. और मैं चाहता हूं कि आप गौर से सुने कि परमेश्वर ने आज सुबह आपके जीवन के लिए क्या रखा है। Let us pray and say, Lord, open my spiritual eyes so that I may be able to see this wonderful truth which will bring victory and deliverance in my life. आइए हम इस समय प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी आंखें खोलिए ताकि मैं अपने जीवन में इस महान विजय को देखूं और ये मेरे जीवन में छुटकारा लाए। Jesus gave us the power of attorney, यीशु ने हमें अधिकार पत्र दिया है the legal right to use his name. और हमें उसने नैतिक अधिकार दिया है कि हम उसके नाम का उपयोग करें। Jesus gave us this power of attorney. यीशु ने हमें ये अधिकार पत्र दिया है। This is the very legal term because being given the legal right is a very important thing that we can use in our life. ये तो ऐसा नैतिक अधिकार है जो हमें नैतिक रूप में दिया है जिसका हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। What is the value of the power of attorney in our life? हमारे जीवन में इस अधिकार पत्र का मूल्य क्या है? It all depends on how much you can use the name of Jesus in your life. ये तो इस बात पर आधारित है कि आप अपने जीवन में यीशु के नाम का कितना उपयोग करते हैं। How much authority
is backing the name of Jesus. और यीशु के नाम के पीछे कितना अधिकार लगा हुआ है। Bible says all power and all authority is given to the name of Jesus. बाइबल कहती है कि सारा अधिकार और सारा सामर्थ जो है वो तो यीशु के नाम को दिया गया This है। morning I'm asking you a question. आज सुबह मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, Will you be able to use the authority which has been given to you? क्या आप उस अधिकार का उपयोग करेंगे जो कि आपको दिया गया है? If you use that authority in your life, अगर आप अपने जीवन में उस अधिकार का उपयोग करेंगे, that will bring a transformation and it will bring a revolution in your life. ये तो आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा और आपके जीवन में क्रांति लेकर आएगा। God's purpose and plan for your life is not a defeated and a weak life. परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन के लिए ये तो हारा हुआ जीवन या फिर ऐसा कमजोर जीवन नहीं है। But God has given you a life which will always be full of victory and always full of joy in your life. परमेश्वर ने आपको ऐसा जीवन दिया है जो कि हमेशा आपके लिए विजय से भरा हुआ और आनंद से भरा हुआ है। The word of God teaches us that we can use this authority as a believer in every area of our life. परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि विश्वासी होने के नाते हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। Yes. Hallelujah. Jesus' name can be used in prayer. यहाँ यीशु का नाम प्रार्थना में उपयोग किया जा सकता है। You can use the name of Jesus to deal with demons. आप दुष्ट आत्माओं के साथ में व्यवहार करने के लिए आप यीशु के नाम का उपयोग कर सकते हैं। You can ask me this morning, is there any significance for me to use the name of Jesus? आज शायद आप मुझसे ये पूछे कि यीशु के नाम का उपयोग करने में क्या सच में कोई महत्व है? That is where the secret lies. यहीं पर तो ये भेद छिपा हुआ है। No, so many times we depend so much on our own ability to help people. देखिए कई बार लोगों की मदद करने के लिए हम तो केवल अपनी योग्यता पर आधारित होते हैं। We lay hands on people and we say, but we do not know the power which is backing in the name of Jesus. हम लोगों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि लेकिन यीशु के नाम के पीछे कितनी सामर्थ्य है इस बात को हम नहीं जानते हैं। The measure of Lord's ability to do in your life is the measure of the ability in the name of Jesus. परमेश्वर आपके जीवन में जिस नाप में काम करते हैं वो तो वही नाप है जो कि यीशु के नाम में योग्यता रखता है। All that is invested in the name of Jesus belongs to us as believers. और ये सब जो है ये तो यीशु के नाम में निवेश करके रखा गया और विश्वासी होने के नाते ये हमें दिया गया है। Jesus gave us the unqualified use of his name. यीशु ने हमें अपना नाम उपयोग करने के लिए दिया है और हालांकि हम उसके लायक नहीं हैं। Let us turn to John chapter 16 verses 24. आइए यूहन्ना अध्याय 16 वचन 24 यहाँ पर देखते हैं। John chapter 16 verses 24. यूहन्ना अध्याय 16 वचन 24। It says, until now you asked nothing in my name, ask and you will receive, that your joy may be full. ये कहता है अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Here Jesus says, you have not asked anything in my name. यीशु ने कहा कि तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा है। No, we cry to God, we cry to God and we plead with God, but God says, I have given you my name and you have to use that name, that authority which I have given in my name. हम परमेश्वर को पहले पुकारते हैं और फिर परमेश्वर कहते हैं कि देखो तुमने अब तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, मैंने तुम्हें ये नाम दिया है, तुम इस नाम के अधिकार में मांगो। No, many of us pray in the sake of Jesus. हम में से कई लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि यीशु की खातिर। But the word of God says you have to pray in the name of Jesus. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको यीशु के नाम में प्रार्थना करनी है। Because of lack of knowledge, our prayer has not worked. हमारे ज्ञान की कमी के कारण हमारी प्रार्थनाएं काम नहीं करती है। Because we pray for Jesus' sake, but we have to pray in the name of Jesus. हम ये प्रार्थना करते हैं कि यीशु की खातिर या यीशु के लिए, लेकिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए यीशु के नाम में। Jesus not only gave us the power to pray in his name,
यीशु ने हमें केवल इतनी सामर्थ्य नहीं दी कि हम उसके नाम में प्रार्थना करें, but he also declares prayer in his name will be answered. और उसने ये भी घोषित किया कि उसके नाम में जो हम प्रार्थना करते हैं उसका वो उत्तर देंगे। When you pray in the name of Jesus, जब आप यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं the Father will listen to your prayer. तो पिता आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। How many of you want your prayers to be listened? कितने लोग चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाए? Then you have to pray in the name of Jesus. तो आपको यीशु के नाम में प्रार्थना करनी चाहिए। You should know what kind of prayer will attract the answer which the Father will give it to you. आपको ये जानना चाहिए कि किस तरह की प्रार्थना इस परमेश्वर को आकर्षित करेगी जिसके कारण परमेश्वर आपको उस प्रार्थना का उत्तर देंगे। Because the Father will endorse every prayer which we pray in the name of Jesus. क्योंकि पिता जो है वो तो हर एक प्रार्थना को देंगे, उत्तर देते हैं जो हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते But हैं। unfortunately, as Christians, we have been brainwashed not to know what power we have in the name of Jesus. लेकिन दुर्भाग्यवश विश्वासी के नाते हमारा मानो पूरा दिमाग धो दिया गया है कि हम नहीं जानते हैं कि यीशु के नाम में कितनी सामर्थ है। Yes, we have been washed completely. We are living in ignorance, and that is why there's so much of defeat and so much of sorrow and there's so much of despair in our life. और इसीलिए तो हम तो अपने जीवन में मानो हमारा पूरा दिमाग धो दिया गया है, इसीलिए हम अपने जीवन में इतने दुख में हैं, इसीलिए हम अपने जीवन में इतनी व्याकुलता में जी रहे हैं। In the New Testament, we have watered the very concept of prayer because we have not understood the reality of the name of Jesus. नए नियम में हमने जो प्रार्थना के जो असलियत है उसके अंदर इतनी मिलावट कर दी है क्योंकि हम यीशु के नाम में जो सामर्थ्य उसके बारे में नहीं जानते We हैं। have watered the promises of God हमने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में इतनी मिलावट कर दी है and ignored what Jesus said. और यीशु ने जो कहा है उसे पूरी तरह से अनदेखा किया है। You have to look into the word of God. आपको परमेश्वर के वचन में देखना होगा। You have to meditate on the word of God. आपको परमेश्वर के वचन पर मनन करना And you होगा have to know what God is saying so that your prayers will be answered. आपको ये जानना होगा कि परमेश्वर क्या कहते हैं ताकि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल सके। No, people have added their own theology and they have gone away from the word of God. लोगों ने अपनी थियोलॉजी इसमें जोड़ दी है और वो तो परमेश्वर के वचन से दूर चले गए हैं And that is why some of their prayers are not being answered. और इसीलिए उनकी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। But today I'm telling you, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूँ, let us focus on the name of Jesus. आइए हम यीशु के नाम पर गौर करते चले जाएं। As we look very clearly as to what the word of God says about the name of Jesus and what power is vested in the name of Jesus, then your life will have a great transformation. और जब हम देखेंगे कि परमेश्वर के नाम में कितनी सामर्थ्य और परमेश्वर में उस नाम में कितनी सामर्थ्य उसने निवेश करके रखी है तो हमारा जीवन बड़ा बदल जाएगा। How many of you want your prayers to be answered? कितने लोग चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया I जाए? know everyone who is praying to God want their prayers to be answered 100%. मैं जानता हूँ हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है वो चाहता है कि उनकी प्रार्थनाओं का 100% उत्तर दिया जाए। The problem with people is they do not believe the infallibility of the word of God. लोगों में समस्या यही है कि परमेश्वर का वचन जो अटल वचन है उसके ऊपर वो विश्वास नहीं करते। Yes, if you do not believe literally what the word of God says, then your prayers will not be answered. और परमेश्वर का वचन जो कहता है अगर आप सच में उस पर विश्वास न करें तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। But every prayer you make, you should align with the word of God. लेकिन आप हर एक प्रार्थना जो करते हैं आपको उसे परमेश्वर के वचन के साथ में जोड़ना चाहिए। Yes, if you do not align yourself with the word of God, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ में नहीं जोड़ते हैं then you'll be disappointed. तो फिर आप निराश हो जाएंगे। Yes, you'll say that my prayers has not been answered. और आप यही कहेंगे कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया जा रहा The है। problem is not with the prayer. समस्या यहाँ पर प्रार्थना में नहीं है। The problem is with how you pray. That is more important. लेकिन समस्या ये है कि आप कैसी प्रार्थना करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। When you pray in the name of Jesus, जब आप यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं it passes from your hand to the hands of Jesus. तो ये आपके हाथों से यीशु के हाथों में चली जाती है। When Jesus prayed, he said,
Father, I thank you in the name of Jesus. I thank you that every time I pray that you answer my prayer. यीशु ने यही प्रार्थना की कि पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ उसका आप उत्तर देते हैं। Every time Jesus prayed, God answered his prayer. हर समय जब यीशु ने प्रार्थना की परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। So when you want to pray, when you pray in the name of Jesus, then your prayers will be answered. तो जब आप प्रार्थना करते हैं और खास करके जब आप यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। My friend, I want you to change your focus this morning. मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि आज आप अपना गौर बदल दें। I want you to have a new kind of mindset in your life. मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में बिल्कुल नई मानसिकता रखें। When you are able to focus in the name of Jesus, and when you know the power which is vested in the name of Jesus, जब आप इस तरह से गौर करते हैं और आप जानते हैं कि यीशु के नाम में कौन सी सामर्थ्य निवेश की गई है, then you'll know that God will will answer every prayer you make. तो फिर आप जानेंगे कि आप जो भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। You know, when you pray in the name of Jesus, it is as though Jesus praying that same prayer. जब आप यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मानो यीशु स्वयं वो प्रार्थना कर रहे हैं। He takes our place and he puts himself in that place. वो हमारी जगह लेते हैं और अपने आप को उस जगह पर रखते हैं। Hallelujah! What a glorious difference will it make when you pray in the name of Jesus. और सच में जब आप यीशु के नाम में प्रार्थना करेंगे तो ये कितना महिमा में फर्क लेकर आएगा। It not only make it a legal ground, ये केवल उसके लिए नैतिक जगह ही नहीं बनाता है, but it is also a business proposition with God. और ये तो मानो परमेश्वर के साथ में व्यवहार करना है, व्यापार करना है। When we pray in the name of Jesus on this earth, जब हम इस पृथ्वी पर यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं he takes our place in heaven. तो वो स्वर्ग में हमारा स्थान ले लेते हैं। Yes, in Mark 16, मरकुस अध्याय 16 17 and 18, let us read. आइए वचन 17 और 18 यहाँ पर हम पढ़ते हैं। Mark 16, मरकुस 16 17 and 18. वचन 17 और 18 आइए एक साथ हम पढ़ते हैं। And these signs shall follow those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. जो विश्वास करे, ये कहता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। In his name you can cast out demons. उसके नाम से आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं And you will be speaking with new tongues. और आप अन्य भाषा में नई नई भाषा में You will बोलेंगे। take up serpents, and if they drink anything deadly, it will no means hurt you. और आप सांपों को उठा लेंगे और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो इससे भी आपकी कोई हानि न होगी। Yes, that is the power which is vested in the name of Jesus. और यही तो वो सामर्थ्य है जो यीशु के नाम में निवेश करके रखी है। But unfortunately, we Christians, we have not understood the power and the significance of the name of Jesus. दुर्भाग्यवश हम जो विश्वासी हैं यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ्य उसका जो महत्व है उसे हम नहीं समझते हैं। And even in Matthew 28, 18 and 19 says, all authority is given to me. और मत्ती अध्याय 28 में इस तरह से कहता है कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Yes, God has given all the authority in the name of Jesus. परमेश्वर ने यीशु के नाम में आपको सारा अधिकार दे दिया And है। the Bible says there is no other name by which you will be saved. बाइबल कहती है कि और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा आप उद्धार पाएं। It is the name of Jesus. ये तो यीशु का नाम है। My friend, I want you to understand, and I want to emphasize this morning the great significance in using the name of Jesus. मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें और यीशु के नाम का उपयोग करने का महत्व क्या है उसे आप जानें। If you understand that great name,
अगर आप उस महान नाम को जान ले, समझ ले, I tell you, my friends, मैं आपको बताऊं it दोस्तों, will bring a great difference in your life. ये आपके जीवन में बड़ा फर्क लेकर It आएगा। will bring a new meaning in your life. ये आपके जीवन में नया अर्थ लेकर It will आएगा। bring a new power in your life. ये आपके जीवन में नई सामर्थ्य लेकर How आएगा। many of you want to live in power in your life? आप अपने जीवन में कितने लोग हैं जो सामर्थ्य में रहना चाहते हैं? Change your mindset this morning. आज अपनी मानसिकता बदल दीजिए Look away from an ordinary prayer into a supernatural prayer. और आप एक साधारण प्रार्थना से अलौकिक प्रार्थना में देखना शुरू करें। Everyone in a heart desire to have to pray a supernatural prayer. हम में से हर एक व्यक्ति अपने हृदय में ये मनसा रखता है कि हम एक अलौकिक प्रार्थना करते चले How जाएं। can we do a supernatural prayer? हम कैसे अलौकिक प्रार्थना कर सकते हैं How can we always touch the heart of God? और कैसे हम हमेशा परमेश्वर के हृदय को छू सकते How हैं can you really see every prayer being answered? और आप सच में कैसे देख सकते हैं कि हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया गया हो? It can happen only when we align ourselves according to the word of God. ये केवल तब होगा जब हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार रखेंगे। Yes, he has inherited a great name. That's what Hebrews says. और इब्रानियों की पत्री कहती है कि उसने बड़ा नाम प्राप्त किया। Yes, in this last days, that is the wonderful thing. God has given us this rich heritage for Christians like us. और इन दिनों में देखा जाए तो हम जैसे विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ी विरासत, बहुत बड़ी मिरास दी है। That is the inheritance we have. और यही तो विरासत हमारे पास में है। But we are not using the inheritance which God has given for us. लेकिन परमेश्वर ने हमें जो विरासत दी है हम उसका उपयोग नहीं कर रहे This हैं। is the greatest treasure God has given you, my friend. मेरे दोस्तों, ये तो बड़ा खजाना है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। This is a time to rejoice and should be glad because we have a wonderful name. और ये तो समय है कि हम आनंदित हो जाए, खुश हो जाए, क्योंकि हमारे पास में अद्भुत नाम है। If you come to the throne of God, अगर आप परमेश्वर के सिंहासन के पास आते हैं, if you want your prayers to be answered this morning, अगर आप चाहते हैं कि आज सुबह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, start exercising your authority. तो आप अपने अधिकार का उपयोग करना शुरू कर दें। See, no point in begging and no point in crying. देखिए, रोने में और भीख ना मांगने का कोई अर्थ नहीं है। Only the beggars beg. केवल भिखारी भीख मांगते हैं The sons ask. और जो बेटे हैं वो तो मांगते हैं। If you are a son of the living God, you'll ask him and he'll give it in the name of Jesus. अगर आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं तो आप उससे मांगेंगे और यीशु के नाम में वो आपको I देंगे। believe this morning there's a transformation is taking place in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। Yes, God is doing something wonderful in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत कर रहे हैं। He wants to bring a transformation in your life. वो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आना चाहते हैं। Yes, and when you start using the name, you will see every bondage is being broken. जब आप उस नाम का उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक बंधन तोड़ दिया जा रहा Every है। shackles and every chains will be broken in the name of Jesus. हर एक बंधन, हर एक जंजीरें जो है यीशु के नाम में तोड़ दी जाएगी। You know, the Bible says the name of Jesus can be used in heaven, in earth, and under the earth. बाइबल कहती है कि यीशु के नाम का उपयोग होगा स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, In all the world, पूरे संसार में। the power of Jesus' name is so wonderful. यीशु के नाम की सामर्थ तो सच में इतनी अद्भुत है। My friend, are you willing to use that name and exercise that name of Jesus in your life? मेरे दोस्तों, क्या आप सच में यीशु के नाम का उपयोग करना चाहते हैं, अपने जीवन में उसके द्वारा काम करना चाहते हैं? Jesus has given us that legal right to use his name. यीशु ने हमें ये नैतिक अधिकार दिया है कि हम उसके नाम का उपयोग करें। Yes, God wants us to be in joy and in happiness and in victory in our life. परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में आनंद में रहे, खुशी में रहे और अपने जीवन में विजय में रहें। Because there is power in this wonderful name of Jesus. क्योंकि यीशु के इस अद्भुत नाम में सामर्थ है। Yes, when Jesus has given this name to his church, और जब यीशु ने ये नाम अपनी कलीसिया को दिया है, it is a signed check. It's a signed blank check for you to use in every area of your life. ये तो दस्तखत किया हुआ ऐसा ब्लैंक चेक है कि अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप इसका उपयोग This करें। is the resources of heaven for you and for me, my friend. मेरे दोस्तों, ये तो स्वर्ग का स्रोत है आपके लिए और मेरे लिए।
because of a small vision, हमारे छोटे दर्शन के कारण we are unable to accept this wonderful gift which has been given to us. हमें जो ये अद्भुत वरदान दिया गया है, हम इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। Jesus has signed this check and has turned it over to us. और यीशु ने इस चेक पर दस्तखत कर दिया है और उसने ये चेक हमें दे दिया है। It is up to us and to you to fill up this check. अब ये तो आपकी बारी है, ये हमारी बारी है कि हम इस चेक पर अपने वो राशि भर दें। My friend, if you want the power of Jesus to move upon your life, मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यीशु की सामर्थ आपके जीवन में काम करें, this morning I want you to make an important decision. मैं चाहता हूं कि आज आप एक महत्वपूर्ण निर्णय लें। If you have not accepted Jesus as your personal savior, अगर आपने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया if you है, have not believed that Jesus died for you on the cross of Calvary, अगर आपने विश्वास नहीं किया है कि यीशु आपके लिए कलवरी के क्रूस पर मर I गए, want you to accept Jesus as your personal savior. मैं चाहता हूं कि आप यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। This name is only for the people who have been born and been washed with the blood of Jesus. ये तो नाम इन लोगों के लिए है जो कि ये यीशु के उसके द्वारा नया जन्म पाए, यीशु के नाम में और उसके द्वारा स्वीकार किए गए हैं। This name is only for his children. ये नाम तो केवल उसकी संतानों के लिए It है, is not for everybody. ये सभी के लिए नहीं है। If you want that name to work in your life, अगर आप चाहते हैं कि ये नाम आपके जीवन में काम करें, you have to give your life to the Lord Jesus Christ. तो आपको अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना होगा। When you give your life to the Lord Jesus Christ, जब आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, my friend, you'll find a great transformation coming into your life. मेरे दोस्तों, आप पाएंगे कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा Your है। family will be blessed, your life will be blessed, your children will be blessed. आपका परिवार आशीष पाएगा, आपका जीवन आशीष पाएगा, आपके बच्चे आशीष पाएंगे। Yes, this morning God wants to touch you, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, आज परमेश्वर आपको छू लेना चाहते The हैं। Lord, I believe, has opened your eyes to this new truth in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में इस नई सच्चाई के लिए परमेश्वर ने आपकी आंखों को खोल दिया है, And I believe it is going to bring great victory in your life. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपके जीवन में महान विजय लेकर आएगा। So let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful time. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी स्तुति करते इस अद्भुत समय के लिए। I know you have been touching the hearts of people this morning. मैं जानता हूँ आज सुबह आप अपने लोगों के हृदय को छू रहे हैं। I know your word will not come back void. हम जानते हैं प्रभु कि आपका वचन कभी खाली लौट कर नहीं It आएगा, will go and perform and prosper in whatever it is doing. और जो कुछ भी ये काम करने के लिए भेजा गया है, जो कर रहा है, उसे पूरी तरह से फलवंत करके ही I आएगा। believe, Lord, you are speaking to every heart which is listening to this word this morning. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, इस वचन को सुनने वाले हर एक हृदय से आप बात कर रहे हैं। Transform their life. इनके जीवन को बदल दीजिए, Change their life. इनके जीवन को बदल दीजिए, Bring a new meaning and a new joy into their life. इनके जीवन में नया अर्थ और नया आनंद लेकर आइए। Thank you for speaking to them this morning, आज Lord. सुबह इनसे बातें करने के लिए धन्यवाद। Thank you for your blessing in the name of Jesus. आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद यीशु के नाम We में। thank you and we praise you and we bless you. हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, धन्य कहते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते If हैं। you have been blessed with this message, अगर आप इस संदेश के द्वारा आशीष पाए हैं, we have given our cell number, which is in the bottom of the in the TV, और हमने अपना सेल नंबर यहाँ पर अभी टीवी के स्क्रीन पर दिया है, and you can call us. आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, Our intercessors are always ready to take your prayer request. और हमारे प्रार्थना मध्यस्थ हमेशा तैयार है कि आपके प्रार्थना निवेदन को लें। If you want to call us, if you want to message us, you can WhatsApp through this number. अगर आप हमें संदेश भेजना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते I हैं। believe God is going to bring a revolution in your life, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में बड़ी क्रांति लेकर and there is आएंगे, going to be a great blessing flooding into your life. और आपके जीवन में महान आशीष बाढ़ के जैसे आएगी। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen.
Jesus.